Hello friends. So as you already has given your IAS prelims exam just 2 days back, so you must be wondering about the most reliable answer key of your exam paper. So there are many coaching institutes who have already given you the answer key. So here is one more answer key which I am giving you, but I can make sure that I have taken too much time to prepare this answer key, and you will find the answers as the most reliable answers. And I'll explain you also why the answers are why the answer which I am giving you are the actual answers of the questions, and you can calculate your score using this answer key. So without wasting much time, so I'll be starting uh, the questions and the answers of those questions which has been asked in your IS prelims exam. So the question number one is the carbon nanotubes question. So the answer of this question is the option number C, that is 134 only. Now, as you know about the carbon nanotubes, so definitely the statements which are given are not a very straight forward question. So the person who can answer this question, the person should know in detail about the carbon nanotubes and what are the applications of carbon nanotubes in the different spheres of life. So carbon nanotube definitely can be used as carriers of drugs and antigens in the human body. So it can be used as the carrier of drugs. So you can inject the drug and antigens in the human body in the carbon nanotubes, and they carry the drugs and antigens, and it will reach the particular organ, whichever organ is being the nanotube is used to to take the medicine and the drug and the antigens. So we can use the carbon nanotube. So statement number one is correct. Statement number two is not correct. Why it is not correct? Because the point number second I have given the statement at point number second is the limitation of carbon. This is the limitation presently of the carbon nanotubes, and it is seen that when they come into contact with blood clot got formed. That is why presently nanoparticles are still not used as blood vessels. तो ये नहीं यूज़ होता है. अभी रिसर्च हो रही है, इस डायरेक्शन में काम हो रहा है. अभी फुल प्रूफ नहीं है इसके ऊपर, अभी भी एप्लीकेशन नहीं हो रही है. तो हम अभी की बात करेंगे. रिसर्च अभी जारी है, अभी कोई एप्लीकेशन कार्बन नैनोट्यूब्स की इन दी फॉर्म ऑफ ब्लड कैपिलरीज नहीं है. They can be used in biochemical sensors. Yes, they are being used in the biochemical sensors, and they are biodegradable also. So carbon nanotubes are biodegradable. Biodegradable आप जानते हैं, which can be degraded biologically. मतलब easily biodegrade हो जाए. जैसे प्लास्टिक बोलते हैं, they are not biodegradable, but carbon nanotubes are biodegradable. So statement number 2 ही गलत है, बाकी सब ठीक है. तो 134 is the correct answer. तो the next one, ड्रोन्स क्या क्या काम के लिए यूज़ होते हैं? तो सारे काम के लिए यूज़ होते हैं. पेस्टिसाइड्स को भी स्प्रे कर सकते हो आप देख ही रहते हैं. अभी जो लोकस्ट का अटैक हुआ था, तो ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड एज द मीडियम टू स्प्रे द पेस्टिसाइड टू द केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड over the locust, the group of locust, okay na, swarm of locust. Then inspecting the craters, definitely this is right. craters को भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं. और ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्पाउटिंग वेल्स. स्पाउटिंग वेल्स मतलब जब वो सांस लेते हैं, तो उनके ब्रेथ सैंपल्स को भी कलेक्ट करने के लिए ड्रोन्स यूज़ होते हैं फॉर डीएनए एनालिसिस. तीनों यूज़ होते हैं, तीनों स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट, ये जो स्टेटमेंट है ये इवोल्ड लीजा की स्टेटमेंट है, ठीक है ना. इवोल्ड लीजा, इसमें कुछ चेंज हुआ है. पहले लीजा पाथफाइंडर में था 2.5 किलोमीटर, बट यहाँ पे है दैट इज साइट्स 1 मिलियन किलोमीटर. तो 2.5 मिलियन किलोमीटर अगर स्टेटमेंट होती है तो दैट विल बी द लीजा पाथफाइंडर. बट बिकॉज द स्टेटमेंट इज दैट इज साइट्स द spacecraft flying formation in the shape of an equilateral triangle that is sites 1 million kilometers long with laser shining between the craft. तो ये the answer is evolved Lisa. So question number 4. So all the statements are correct.
genetic changes can be introduced in the cells that produce eggs or sperms of a prospective parent. So genetic changes can be introduced and this is called the germline gene therapy, इसको ये बोलते हैं. तो आपको कोई भी जेनेटिक चेंजेस करने हैं उन सेल्स में जो कि ऐसे एग्स प्रोड्यूस करते हैं, उन जो कि पेरेंट्स बनने के लिए ज़रूरी होते हैं, तो जेनेटिक चेंजेस आप कर सकते हैं उन सेल्स में. Person's genome can be edited before birth at the early embryonic stage. Yes, genome can be edited. Definitely it is right. Then human induced pluripotent stem cells can be injected into the embryo of a pig. ये हुआ भी है. ये बेसिकली क्या है ना, पिग्स के अंदर कुछ ऐसा कुछ ह्यूमन इंड्यूस्ड डाला गया, प्लूरी स्टेम सेल्स को इंजेक्ट किया गया ताकि कुछ बेसिकली कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ताकि जो पिग्स हैं कुछ ह्यूमन क्वालिटीज़ या ह्यूमन जेनेटिक्स या ह्यूमन डीएनए कुछ उसमें इंजेक्ट किया गया स्टेम सेल्स, ताकि वो एक जेनेटिक पिग को प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ जीन्स प्रोड्यूस करने के लिए. तो ये हुआ है और ये भी करेक्ट है. तो कैन बी इंजेक्टेड. तो बहुत ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन्स डेफिनेटली दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया, सही है. मेनिंगिटिस एंड सेप्सिस, सही है. एंटीबायोटिक्स that are not effective against drug resistant bacteria can be reduced. तो ऐसे एंटीबायोटिक्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर देता है जो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्टिव नहीं है. तो इन एंटीबायोटिक्स को यूज़ नहीं करना पड़ेगा अगर आप न्यूमोकोकल वैक्सीन लगवा लेते हैं तो. और लेकिन इनका साइड इफेक्ट और एलर्जिक रिएक्शन होता है. अगर आप न्यूमोकोकल लगवाएंगे तो आपको बुखार आएगा, आपके उस एरिया में दर्द होगा. बच्चों को जनरली आप लगवाते हैं तो आपको पता है कि ये दर्द होता है, उनको बुखार आता है, तो डेफिनेटली साइड इफेक्ट होता है. तो 1 and 2 आर करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग क्योंकि इनके साइड इफेक्ट होते हैं. पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पीकेआई इज यूज इन द केस ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर. तो कुछ भी ऐसा आपको रिपोजिटरी डेटा स्टोर करना है डिजिटली, तो पीकेआई से आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. पीकेआई मतलब कुछ नहीं है, इसमें कुछ कीज़ के थ्रू डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं और फिर आप उसको आप सिक्योरली सेव कर सकते हैं. तो डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में पीकेआई यूज़ होता है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स? स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर 1 and 3. 2 इज रॉन्ग. प्लांट सेल्स के सेलुलोज सेल वॉल्स होते हैं, एनिमल सेल्स के नहीं होते. प्लांट सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं और एनिमल सेल्स के भी होते हैं, दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं. ये स्टेटमेंट गलत है कि प्लांट सेल्स के नहीं होते. और मैच्योर प्लांट सेल्स का एक ही वैक्यूल होता है, एनिमल सेल्स के बहुत छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. तो 1 and 3 आर करेक्ट. बेंजीन कौन कौन से किन किन की वजह से होता है? सारी सही हैं. ऑटोमोबाइल से भी होता है, टबैको स्मोक, सिगरेट स्मोकिंग, वुड बर्निंग से भी होता है, वार्निश वुडन फर्नीचर्स को अभी आपने पेंट किया है वुडन फर्नीचर को वार्निश, उससे भी होता है. और जो प्रोडक्ट्स हैं मेड ऑफ पॉलीयूरिथेन, उनसे भी ये बेंजीन एक्सट्रैक्ट मतलब इमिट होता है. तो ये बेंजीन पोल्यूशन इन सबसे होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंस इन द नियर फ्यूचर, so which of the following actions policies are most likely to give immunity to India? So what are the steps which definitely India needs to take so that the global financial crisis will not impact India, or will definitely impact? If it impacts India, it has to be to a very small extent. So what actions policies most likely? So first, not depending on short term. Definitely अगर डिपेंड करेगा इंडिया तो बहुत ह्यूज इंटरेस्ट रेट होता है, तो इंडिया पे ह्यूज बर्डन होगा फॉरेन बोरोइंग्स का, क्योंकि शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स का ह्यूज इंटरेस्ट रेट होता है. डेफिनेटली इंडिया को डिपेंड नहीं रहना है उनके ऊपर. ओपनिंग अप टू तो 1 ठीक है, हाँ ये नहीं करना है. अगर ये नहीं करेगा तो डेफिनेटली इम्यूनिटी मिलेगी इंडिया को. ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, तो अगर आप ओपन कर दोगे फॉरेन बैंक्स को तो डेफिनेटली इससे क्या होगा ना, एक तरह से आपने बोल दिया एफडीआई, तो डेफिनेटली इससे क्या होगा, अगर ग्लोबली फाइनेंशियल क्राइसिस है तो डेफिनेटली क्या होगा कि अगर आप फॉरेन बैंक्स को खोल देंगे इंडिया के लिए, तो हो सकता है वो जो है अपना जो शेयर है इंडियन बैंक्स में या फॉरेन बैंक जो खोलेंगे अपनी ब्रांच बंद कर सकते हैं क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस होगा. तो डेफिनेटली ओपनिंग, अगर आप ओपनिंग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को, तो फाइनेंशियल क्राइसिस ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा.
इसके अलावा मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, तो डेफिनेटली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी तो ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए, फुल कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी। तो वही है कि अगर आप सारे कैपिटल जो भी कैपिटल अकाउंट है तो अगर आप वो कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि जो भी कैपिटल एसेट्स हैं अगर वो इंडियन कैपिटल एसेट्स हैं अगर आप फॉरेन करेंसी में उनको इक्वल कन्वर्जन अलाउ करेंगे तो डेफिनेटली इसका मतलब ये इकोनॉमी आप ग्लोबली खोल रहे हैं तो वो भी अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तो यहाँ पे भी इम्पैक्ट होगा। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, वन ओनली। दिस क्वेश्चन नेक्स्ट, एंड दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन आई मस्ट से, बिकॉज इसमें लिखा है इफ़ यू विड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। अब डिमांड डिपॉजिट अकाउंट आपको पता होना चाहिए क्या अकाउंट है। डिमांड डिपॉजिट अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें आप पैसे कभी भी निकाल सकते हैं डिमांड बेसिस पे। तो पैसे जनरली गवर्नमेंट लायबल होती है या बैंक लायबल है कि वो आपको पैसे देगा ही देगा, तो वो पैसा डेफिनेटली वो लोन वगैरह में कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो पैसा कभी भी निकाला जा सकता है। तो बैंक को कोई अर्निंग नहीं हो रही, तो वो मार्केट में नहीं है पैसा, एक आपने लॉकअप में सिक्योर करके रख दिया, उसका पैसे का मनी का कोई यूज़ नहीं है। तो अगर आप निकाल लेते हैं उस मनी को जो कि किसी काम नहीं आ रहा था, तो उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा। तो यहां पे पढ़ लीजिए इमीडिएट इफेक्ट का क्या मतलब है। रीड द वर्ड, जैसे मैंने बोला, रीड द वर्ड इमीडिएट इफेक्ट। सो इमीडिएट इफेक्ट इज देयर विल बी नो इमीडिएट इफेक्ट सिंस द मनी डिपॉजिटेड इन डिमांड डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये कभी भी डिपॉजिट विड्रॉ हो सकता है, तो इसका इमीडिएट इफेक्ट तो कुछ नहीं होगा। सो दैट मनी इज ऑलरेडी लिक्विड मनी मेंट फॉर सप्लाई टू द कस्टमर एनी टाइम। तो क्योंकि ये लिक्विड मनी ही माना जाता है विच कैन बी, तो ये एक तरह से जैसे बोलते हैं ना स्टैट्यूटरी टू लिक्विडिटी रेट ऑफ SLR, तो बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, तो ये लिक्विड मनी के रूप में ही माना जाता है। तो ये मनी का इमीडिएट कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके कई कारण हैं, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो रीज़न यही है कि ये ऑलरेडी लिक्विड मनी माना जाता है, तो ये इनफ्लो में नहीं है डेफिनेटली क्योंकि बैंक में सेव रखा है, बट ये लिक्विड मनी क्योंकि ऑलरेडी माना जाता है बैंक के पास, तो बैंक को इसको सप्लाई करना ही पड़ेगा जब भी ऑन डिमांड आता है। तो क्योंकि ये ऐसा मनी नहीं है कि बैंक के पास सेव था और बैंक ने, जैसे FD है मान लीजिए, अगर FD निकाल लिया जाएगा तो डेफिनेटली वो उस मनी सप्लाई को बढ़ा देगा, बट क्योंकि ये ऑलरेडी लिक्विड मनी है तो सप्लाई को नहीं बढ़ाएगा। तो इमीडिएट इफेक्ट तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट मानते हो डेफिनेटली ये मनी को आप स्पेंड करोगे मार्केट में, तो आप कुछ सामान खरीदोगे, अब शॉपकीपर के पास जाएगा, शॉपकीपर कुछ सामान खरीदेगा तो उसके अगले स्टेप पे जाएगा, तो तब मनी सर्कुलेट हो जाएगा। बट इमीडिएट इफेक्ट इस डिमांड डिपॉजिट का कुछ नहीं होगा। तो द एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, इमीडिएट इफेक्ट विल बी टू लीव इट अनचेंज, नो इफेक्ट विल बी देयर एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अभी मैं आपको बता दूं हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ही वेग क्वेश्चंस हैं, ये मुझे भी नहीं आते थे, मैंने इनको गूगल करके सर्च किया है आप लोगों के लिए और इसका आंसर यहाँ पे ढूंढा है। तो ये मुझे भी नहीं आते थे, बहुत ही वेग क्वेश्चंस हैं, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, पता नहीं कहाँ से इन्होंने निकाला है। बट पारामिताज क्या होता है बेसिकली, थोड़ा सा मुझे टर्म देख के समझ में आ रहा था, ये बुद्धिज्म रिलेटेड हो सकता है। एक तो UPSC इज़ वेरी मच फैसिनेटेड बाय बुद्धिज्म, मैं आपको बता दूं बहुत क्वेश्चंस बुद्धा रिलेटेड, बुद्धिज्म रिलेटेड UPSC पूछता है। तो कोई भी अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है जो बुद्धिज्म रिलेटेड होता है या लगता है आपको, तो आप मान सकते हैं कि बुद्धिज्म वाला आंसर इसका हो सकता है। तो करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म पारामिताज इज परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्व पाथ, दिस इज द करेक्ट आंसर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द रुक्माबाई केस, जो रुक्माबाई केस है 1884 का, वो किसके रिवॉल्व करता है। अब मैं आपको बता दूं, आपने ये अपने हिस्ट्री की बुक्स में या किसी सोशल स्टडी की बुक में आपने पढ़ा होगा कि जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 है, जिसमें मतलब जब भी मैरिज होगी बॉय एंड गर्ल की तो वो कंसेंट के द्वारा होगी। तो ये कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, और एज भी एक फिक्स की गई है उसमें, आई थिंक 12 ईयर्स कुछ फिक्स की गई थी, तो 12 साल के होने चाहिए तभी शादी की जा सकती है। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास किया गया था 1891 में, तो उससे रिलेटेड ये हो सकता है। तो एज ऑफ कंसेंट इज द करेक्ट आंसर। एंड इसमें कुछ ये भी था कि रखमाबाई नहीं जाना चाहती थी अपने पति के साथ, बट जो उसका पति है वो अपने पास रखना चाहता था, ऐसा कुछ था, क्योंकि उसने छोड़ दिया था पति ने उसे। तो वो अपने कंजुगल राइट्स, कंजुगल मतलब जो ये कपल की बॉन्डिंग होती है, कपल के जो आपस में राइट्स होते हैं, मेल फीमेल के जो मैरिड होता है,
तो उसका रेस्टिट्यूशन मतलब उसका वापस वो चाहता था कि उसको बरकरार रखा जाए, जो कंजुगल राइट्स हैं उनको रेस्टोरेशन टाइप्स कि रेस्टोर कर दिया जाए। बट अदालत ने समाउ डिज़ोल्व कर दिया था क्योंकि बीवी नहीं चाहती थी, और वो इसलिए भी नहीं चाहती थी क्योंकि वो रहता भी नहीं था, पति ने छोड़ दिया था, फिर बाद में वो रेस्टिट्यूशन के लिए आ गया था। तो ये अधिकार मिला था रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की, अगर आप नहीं रहते हो, जो कि अभी भी है। अभी भी जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, उसके द्वारा अगर 7 साल आप नहीं रहते हो तो डेफिनेटली मैरिज डिसॉल्व करने का कुछ प्रोविजन है, अगर द कपल इज नॉट लिविंग विद ईच अदर फॉर सम टाइम। उसका टाइम का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड एज ऑफ कंसेंट के अराउंड ये तो रखमा भाई केस था, ये घूम रहा था। तो 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। राइट टू गेन एजुकेशन, एजुकेशन से कोई मतलब नहीं था इस केस का। इंडिगो कल्टीवेशन सिंपल है, क्योंकि सिंथेटिक डाई आ गई थी तो अनप्रॉफिटेबल हो गया था, इसलिए इंडिगो कल्टीवेशन की वजह से जो ये फार्मर्स थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, बिकॉज ऑफ ये डिक्लाइन हो गया। तो साथ में रिवोल्ट भी किया था, कई सारे कारण थे, एक ये भी कारण था क्योंकि उनकी अनप्रॉफिटेबल हो गया था इंडिगो कल्टीवेशन बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन क्या था, सिंथेटिक डाई। वेलेस्ले ने क्यों एस्टैब्लिश किया था फोर्ट विलियम कॉलेज? इसलिए एस्टैब्लिश किया था ताकि जो वहाँ पे जो उसके सिपा सलार हैं यानी कि सैनिक हैं वो यहाँ की लोकल लैंग्वेज की लर्निंग करें ताकि वो एडमिनिस्टर प्रॉपरली ढंग से कर पाएँ। सो ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन इंडिया, ये उसका मेन कारण था। बट ये नहीं था, बी इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। वो कोई रिवाइव नहीं करना चाहता था इंटरेस्ट को, ओरिएंटल लर्निंग को, कुछ भी नहीं करना चाहता था। वो केवल ये चाहता था कि उसके जो सिपा सलार हैं यानी कि सिविलियंस है ब्रिटिश, ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन इंडिया। जो ब्रिटिश में रहते हैं, ब्रिटिश के जो सैनिक हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज यहाँ पे वो गवर्न कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उलगुलान। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिरसा मुंडा रिवोल्ट से रिलेटेड है। उलगुलान और ग्रेट टुमुल्ट। दिस इज समवॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट इन द सेंस कि ये बहुत रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। ये जनरली पीसीएस में पूछा जाता था, स्टेट पीएससी, बट अभी यूपीएससी भी ऐसा पूछ रही है। अब आप समझ लीजिए यूपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले केवल एनालिटिकल और लॉजिकल क्वेश्चंस आते थे, अब रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं। आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, कौन सा पोएट किसके दरबार में था, किस टाइम उसका कंटेम्प्रेरी किंग कौन सा था, कौन सा पोएट क्या था, आपको सारे किंग के रूल कौन सा वो भी आ सकता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना, ये कि किंग पहला आया था। इवन क्वेश्चन भी आया साउथ इंडिया के रूलर्स के ऊपर, डायनेस्टीज़ के ऊपर। तो आपको पूरी ढंग से पता होनी चाहिए एंशिएंट मेडिवल। सो इसका 3 ओनली है। कालिदास चंद्रगुप्ता 2 में था, अमर सिंह भी चंद्रगुप्ता 2 में था, हर्षवर्धन में नहीं था, पनीनी पुष्यमित्रा शुंगा में नहीं था, कोई नंदा डायनेस्टी में था। तो 3 इज द करेक्ट आंसर, बस यही सही है। 3 प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इन ऑफस्प्रिंग, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ यही है कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर में क्या करते हैं ना कि भाई मान लीजिए किसी आपके अंदर एक कोई प्रॉब्लम है और बच्चे में ना आए, तो उसके लिए कुछ प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है ताकि बच्चे में वो डिसीजेज ना आए। कुछ ऐसा कुछ है इसमें, बहुत डिटेल मुझे नहीं आती, आई एम नॉट ए बायोलॉजी स्टूडेंट, बट ऐसा कुछ है इसमें। दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन माइंड यू, इट इज ए सिंपल क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल मल्टीपल स्फेयर्स ऑफ लाइफ यूज़ हो रहा है, बहुत ही सिंपल है। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन में होता है यूज़, डेफिनेटली होता है। आप जानते हैं एनएलपी में यूज़ होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन होता है। डेफिनेटली आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो स्पीच में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 4 इज़ दी करेक्ट, तो 4 तीनों में है 4। देन डिसीज डायग्नोसिस में यूज़ होता है, आपको पता है, तो 3 and 4 इज़ दी करेक्ट। तो बी और डी आ सकता है इसका आंसर। अब बी और डी में क्या है ना, अब इसमें थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स आपको पता है, आप मीनिंगफुल स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 इसी में ही है, तो ये भी हो जाएगा 1 and 5। सो ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी हो सकता है, और वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सबके लिए ये यूज़ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें 1 इज़ दी करेक्ट, 2 इज़ रॉन्ग बिकॉज दिस इज शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन। डेफिनेटली
फास्टर देन ब्लूटूथ है और कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि ये विजिबल वाले जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विजिबल वाला है जो वेवलेंथ है वो उसमें यूज़ होता है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस. तो 1, 3 and 4 एंड यूजेस वेवलेंथ यही है इसकी 675 to 780 नैनोमीटर. ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि आप वेवलेंथ में कंफ्यूज कर सकते हैं. ब्लॉकचेन, दैट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ब्लॉकचेन बहुत आजकल न्यूज़ में है और बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है. ब्लॉकचेन की खास बात ये है कि ये टेक्नोलॉजी आजकल बहुत जगह इस्तेमाल हो रही है. बैंक्स में यूज़ कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए. बेसिकली आप समझ लीजिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी के लिए यूज़ हो रहा है. सिक्योरिटी क्यों है इसमें? क्योंकि इसका क्या फ़ायदा है कि आप इसको रीड तो कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट इंटरफेयर, यू कैन नॉट राइट. कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बट एवरी वन कैन इंस्पेक्ट. सो दैट इज़ ए पब्लिक कैन यूज़, पब्लिक कैन रीड इट, पर पब्लिक कैन नॉट राइट इट और अपडेट इट. तो 1 इज़ द करेक्ट. 2, नो, ऑल डेटा इज़ नॉट अबाउट क्रिप्टो करेंसी. मैंने बोला बैंक्स में यूज़ होता है, कहीं भी सिक्योरिटी, आपको कोई भी डेटा ट्रांसमिशन करना है, इवन you can use it in the transmission of the इंटरनेट में यूज़ कर सकते हैं आप, और बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हैं. एप्लीकेशन दैन डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनीबडीज परमिशन. कोई भी इसको डेवलप कर सकता है, कोई परमिशन नहीं चाहिए. एनीबडी कैन डेवलप इट. आप उसको जोड़ सकते हैं उसमें. यही इसकी खास बात है ब्लॉकचेन की. अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि ब्लॉकचेन में यही खास बात है कि सिक्योर्ड है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है और किसी परमिशन नहीं चाहिए ब्लॉकचेन में. तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर. पॉलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल है. पार्लियामेंट्री, गवर्नमेंट डेफिनेटली पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और पार्लियामेंट ही उसको हटा सकती है. दैट इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. सो बी इज द करेक्ट आंसर. वेलफेयर स्टेट आप जानते हैं, डायरेक्टिव DPSP, दैट इज द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट. 10, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करता. बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है. तो 1 इज रॉन्ग. जुडिशियल रिव्यू, डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है टू सेव गार्ड द सिटीजन लिबर्टीज. आर्टिकल 32 आप जानते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. 2 इज द करेक्ट आंसर. गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म में क्या है कि ये स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं. तो दैट इज द करेक्ट. क्लास स्ट्रगल नहीं बताता गांधीज्म. मार्क्सिज्म क्लास स्ट्रगल बताता है, गांधीज्म नहीं बताता. गांधीज्म बताता है कि आप कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्पैरिटी है, वो ख़त्म कर दें, स्टेटलेस हो जाएगी सोसाइटी, बट स्ट्रगल नहीं करना है. प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश करने की भी बात तो करते हैं, हाँ दोनों बात करते हैं. प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन डिफरेंस ये है, कहते हैं कि दोनों के पास इक्वल प्रॉपर्टी होगी. प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश नहीं कर रहे हैं, बट इक्वल प्रॉपर्टी होगी. इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन इज नॉट द करेक्ट. सो फाइनल गोल ऑफ ए स्टेटलेस सोसाइटी. ब्यूरोक्रेसी आप जानते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी. सिंपल है ये. प्रिएम्बल डेफिनेटली इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये केशवानंद भारती में बोला है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. लीगल इफेक्ट कोई नहीं है क्योंकि जस्टिशिएबल नहीं है. एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पार्ट्स, कोई पार्ट हर पार्ट से इंडिपेंडेंट है. डेफिनेटली इट इज अ प्रिक्ल्यूड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पार्ट. सो डी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज वेरी 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 सिंपल. गोल्ड ट्रांश, ये IMF का है. IMF में जो गोल्ड वगैरह डिपॉजिट करता है उससे रिलेटेड है. सो IMF का क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर. बेसिकली वो डिपॉजिट करता है और जिसको भी लोन चाहिए वो ये पैसा ले सकता है, IMF से लोन ले सकता है. क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर. दैट इज वेरी सिंपल. पार्ट 4th, दैट इज DPSP, नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स. सो 2 इज द करेक्ट. और डेफिनेटली ये लॉज बाय द स्टेट को इन्फ्लुएंस करता है. DPSP को गवर्नमेंट मद्देनजर रखते ही कानून बनाती है. तो 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर. नाउ द क्वेश्चन इज, according to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in the state. So this statement is not correct because the first half of the statement, that is a person who is eligible to vote can be made a minister.
So there is no such provision in the Constitution of India that a person who is eligible to vote, a person who is eligible to become member of parliament can be made a minister in state for 6 months. Minister in a state for 6 months, this is written, but this is not written who is eligible to vote, because a person who is in prison, actually जो प्रिजन में होगा पर्सन वो वोट के लिए एलिजिबल नहीं है, बट ही कैन बी मेड अ मिनिस्टर बिकॉज वो इलेक्शन तो लड़ ही सकता है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. सो फर्स्ट इज रॉन्ग. सेकेंड, ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years इज परमानेंटली डिस्क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है. मोर देन 2 years है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन है. जितने का वो 6 साल का जब वो छुट के आएगा, यानी कि जब वो फ्री होके आएगा बार से, तब 6 साल का एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन है. Now the next question, consider the following statements. The President of India can summon a session of Parliament at such a place as he thinks fit. That is a correct statement. President आपको पता है सम्मन करता है session of Parliament और at such place as she thinks fit. That is the correct statement. The Constitution of India provides for 3 sessions of Parliament. No, Constitution provide नहीं करता, ये parliamentary convention में है. But it is not mandatory to conduct all 3 sessions. It is the statement is correct, but this is not provided by Constitution of India. This is provided by parliamentary conventions. There is no minimum number of days that the parliament is required to meet in a year. हाँ ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए कोई भी 2 सेशंस. तो 1 and 3 is the correct statement. Are the correct statement. आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 months. ये 6 months का प्रोविजन है. आपको 6 महीने से ज़्यादा आधार का मेटा डेटा स्टोर नहीं रखना है. सो इट इज़ रॉन्ग. स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉरपोरेशन फॉर शेयरिंग. हाँ नहीं कर सकते हैं स्टेट. तो दैट इज़ करेक्ट. सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नहीं कर सकते स्टेट. आधार इज़ मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. नहीं, आधार मैंडेटरी नहीं है अभी. एंड बट आधार इज़ मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ CFI. That is correct. So 2 and 4 are correct. 1 and 3 are incorrect. नहीं, आधार मैंडेटरी नहीं है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए. मैं बता दूं आपको, ये कुछ मैंडेटरी का कुछ किया है उसने एडा ने, बट इट इज स्टिल नॉट मैंडेटरी. आप ऐसे मैंडेटरी नहीं कर सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको अप्रूव ना करे. राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन ऑब्वियसली अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन. MP लेड, इसके बारे में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्वेश्चन. मैंने भी गूगल पे सर्च मार के इसका आंसर देखा है, मुझे भी नहीं पता था. MP लेड्स फंड, पहली स्टेटमेंट सही है. ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ये सब करना है, वो आपको पता है. सेकेंड, SC/ST पॉपुलेशन के लिए डेफिनेटली बेनिफिट होना चाहिए. कुछ स्पेसिफाइड पोर्शन इसका SC/ST पॉपुलेशन के लिए भी जाता है. ये करेक्ट है. MP लेड्स फंड्स आर सेंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस एंड द अनयूज फंड्स कैन नॉट बी, बट ये अनयूज फंड्स यू कैन कैरी फॉरवर्ड टू द, ये नॉन लैप्सेबल फंड है. तो स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट. फोर्थ, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10%. ये ठीक है, ये इंस्पेक्ट करेगा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी. सो 1, 2 and 4 बेसिकली इसको पता होगा वो करेगा. ये आप छोड़ेंगे एग्जाम में क्योंकि इतनी डिटेल किसी को नहीं पता होगी. नेक्स्ट, ये बहुत सिंपल है. 14 to 18 इज राइट टू इक्वालिटी, और ये 17 में आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. सो इट इज राइट टू इक्वालिटी. सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50, दैट इज DPS. अलॉन्ग विद बजट, फाइनेंस मिनिस्टर मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी रखता है. वो क्या है? According to it is presented because this is mandated by Fiscal Responsibility and Budget Management Act, that is FRBM 2003. So D is the correct answer. इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट क्या होता है. ये डिटेल मैंने नहीं देखी है, बट आप इसको देख लीजिएगा. बट D is the correct answer. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लिमिटेड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसकी पावर्स को लिमिट करता है, तो दैट इज लिमिटेड गवर्नमेंट डेफिनेटली. Other than fundamental rights, which of the parts of Constitution reflects the provisions and principles of UDHR?
दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डेफिनेटली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी केवल, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि बताता है कि स्टेट को किस तरीके से कानून बनाने चाहिए, क्या ह्यूमन राइट्स को मद्देनजर रखते हुए, उनको सिक्योर रखते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए कानून बनाने चाहिए. सो 2 इज द करेक्ट आंसर, DPSP ओनली. इन इंडिया लीगल, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये नहीं पता होगा, जिनको डिटेल नहीं पता है ये भी आपको छोड़ना होगा एग्जाम में, कई लोगों ने छोड़ा होगा. सो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ आपको पता है ये फ्री सर्विसेज देती हैं. सो 1 and 2 आर द करेक्ट. पर्सन विद जो 1 लाख से कम है और ट्रांसजेंडर विद 2 lakhs. OBC का भी कुछ प्रोविज़न है और सीनियर सिटीजन सभी को नहीं मिलेगा, उसका भी कुछ प्रोविज़न है. OBC का कोई प्रोविज़न नहीं है, सीनियर सिटीजन्स का भी है, बट सीनियर सिटीजन्स का प्रोविज़न है कि भाई कुछ एक लिमिट है एनुअल इनकम की. तो 1 and 2 आर करेक्ट. और सभी ऑल सीनियर सिटीजन्स को नहीं है और OBC को तो वही नहीं है. फ्री लीगल सर्विस अथॉरिटी की फ्री लीगल फीस नहीं है. सो ये बेसिकली ये फैक्चुअल क्वेश्चन है. So 1 and 3 are the correct answer. Alma Ata is healthcare. Talanoa is for climate change. Definitely under 2 भी climate के लिए है और Hague Convention आपका ये भी health के लिए है कुछ. So 1 and 3 are the correct answer. ये भी factual है. 2 and 3 बनियान and मिरासीदार. Orang is something different. So 2 and 3 are the correct. So history is too difficult. 2 and 3 आप देख लीजिए. You can search on the net the facts of the question. So 2 and 3 are the correct. If I will be giving the exam, I will be leaving this question because I don't know the answer. That is too difficult actually. This is very simple. Impact is इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट आपको पता है. इंडियन एंटी क्राफ्ट वर रूल दैट इज अप टू 1850, 19th सेंचुरी मतलब 1900 तक के बीच में, फर्स्ट हाफ मतलब 1850 तक. तो इंडियन एंटी क्राफ्ट रूल हो गए थे पूरी तरीके से. दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल. 1850 के बाद कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, पर इनिशियली इंडियन एंटी क्राफ्ट वर टोटली रूइंड. रेलवे लाइंस आपको पता है कब आई थी? 1853 में पहली लाइन आई थी. मशीन्स कोई नहीं है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. ये यहाँ पे तो वहाँ पे बनता था और यहाँ पे बिकता था. नहीं, कोई ड्यूटी इम्पोज नहीं हुई. 4th is wrong. तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट रूल, वेरी सिंपल क्वेश्चन. दिस इज द क्रोनोलॉजी जो मैंने आपको बोला था. इसकी सबसे पहले आपका पल्लवा, देन योर पाला, देन योर प्रतिहारा एंड देन द फाइनल इज दी चोला. अब देख लीजिए, ये तो सिंपल है. 2413. हुंडी इज अगेन डिफिकल्ट. अ बिल ऑफ एक्सचेंज, समथिंग अबाउट दिस. 35. हिस्ट्री क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट. देशेर कथा 1 is correct. It warned against the colonial states' hypnotic conquest of the mind. That is correct. Performance of Swadeshi street plays and folk songs. Definitely it inspired the performance of those plays. Swadeshi. Definitely it is correct. तो यूज़ ऑफ देश मतलब कंट्री के बारे में बात की थी, कोई स्पेसिफिक रीजन के बारे में बात नहीं की थी बंगाल के. तो 3rd is wrong. So 1 and 2 आर करेक्ट. गांधी इम्पैक्ट, दैट इज़, ये एक थोड़ा सिंपल है क्योंकि हम किताबों में पढ़ते हैं. गांधी इम्पैक्ट में कांग्रेस को डेफिनेटली इनवाइट किया था 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें गांधी जी गए भी थे. विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस इज डेफिनेटली करेक्ट. एक्सेप्ट गांधी जी का एक्सेप्टेंस नहीं किया सजेशन का. पर इंक्वायरी पुलिस एक्सेसेस के ऊपर इंक्वायरी नहीं बैठी, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था. तो 3rd इज गलत. तो 1, 2 and 4 रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विद वायलेंस. 4. So 1, 2 and 4 are correct. Vital Vidvansak, that is A. Gopal Baba Valankar. I didn't know the answer. Kulya Vap and Durona Vap are the measurement of land. Again a question. अशोका, मेनली अशोका के बारे में बोलते हैं.
जो भी इंस्क्रिप्शंस पे जो भी इतनी राइटिंग्स लिखी गई हैं, अलग अलग मैसेजेस दिए गए हैं, वो मोर ओवर अशोका के से ही दिए गए हैं. तो यू कैन guess, but that will be a wild guess. Fertigation in agriculture. So what are the advantages? It controls the alkalinity of irrigation water. It is correct. Efficient application of rock phosphate and all other phosphatic fertilizer is possible. That is not at all possible. Increase availability of nutrients. It is, yes, correct. Reduction in the leaching of chemical nutrients is possible. Yes, it is correct. So advantages of fertigation. As you know that fertigation is the application of fertilizers. Fertilizer इरिगेशन, यानी कि फर्टिलाइज़र को आपको देना है क्रॉप्स को, बट वो डिज़ोल्व करके देते हैं कुछ फर्टिलाइजर्स को इरिगेशन के द्वारा, सिंचाई के द्वारा दिया जाता है. सो व्हेन कंबाइंड विद एन एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, तो द न्यूट्रिएंट्स इन वाटर जो भी होता है फर्टिलाइज़र में, सो इट कैन बी मैनेज टू ऑब्टेन द मैक्सिमम पॉसिबल ईट. तो बेसिकली क्या होता है ना कि फर्टिगेशन से जो भी फर्टिलाइज़र का इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा आता है. सो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलते हैं, लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट ज़्यादा होती है, एल्कलिनिटी इरिगेशन वाटर की एल्कलिनिटी कंट्रोल हो जाती है इससे डेफिनेटली. लेकिन इसका कोई रॉक फॉस्फेट और अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स के एफिशिएंट एप्लीकेशन से कोई मतलब नहीं है. केवल इतना है कि न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा अच्छी तरीके से सॉइल में ज़्यादा अच्छी तरीके से उसकी एप्लीकेशन आप कर सकते हो फर्टिगेशन से. नेक्स्ट, कंट्रोलिंग दी कंसिडर दी फॉलोइंग मिनरल्स. मेजर मिनरल्स 2, 3, 4 है. बेंटोनाइट इज अ माइनर मिनरल. दैट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन. OMT, ये हिंदू में कुछ आर्टिकल आया था इसके ऊपर समथिंग, तो वहाँ से इन्होंने लिया है. सो 2 इज़ द करेक्ट आंसर, 1 इज़ रॉन्ग. ओशन मीन टेम्परेचर जो कलेक्ट करते हैं ये जनवरी से मार्च में, उसके थ्रू ये एक्सेस करते हैं कि रेनफॉल जो मानसून में होने वाली है वो कम होगी या ज़्यादा होगी, उससे एक्सेस कर लेते हैं ये जो जून में होगी. तो जनवरी मार्च से ओशन मीन टेम्परेचर देखते हैं, ये उसके स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करते हैं. और ये वन स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. इसमें कुछ 100 मीटर्स तक का है कुछ ये आइसोथर्म. 1 इज़ रॉन्ग, 2 इज़ करेक्ट. तो 2 ओनली. आई सर्च ऑन नेट, मैंने नेट पे इसको सर्च करके इसका आंसर ढूंढा है. आई डिडंट नो द आंसर एक्चुअली टू बी. With reference to chemical fertilizers in India, that is a somewhat not that much tricky question. At present the retail price of chemical fertilizers is market driven and not, नहीं ऐसा नहीं है. सभी फर्टिलाइजर्स का नहीं है. यूरिया वगैरह का तो अभी भी गवर्नमेंट ही उसका जो प्राइस है गवर्नमेंट ही एडमिनिस्टर करती है. तो 1 इज़ रॉन्ग डेफिनेटली. अमोनिया डेफिनेटली यूरिया का इनपुट है, नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है, ये बिल्कुल ठीक है. 2 इज़ करेक्ट. Sulfur, which is a raw material for phosphoric acid fertilizer, is a byproduct of oil refineries. That is correct. So 2 and 3. You can guess. 1 is definitely wrong. So B and C में से होगा. सल्फर के बारे में जानते होंगे कि that is a byproduct of oil refineries. जिसको पता होगा वो 3 भी कर सकता है सही. डेजर्ट नेशनल पार्क आपको पता है ये राजस्थान में है. सो स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर और बाड़मेर में. सो 2 डिस्ट्रिक्ट इज करेक्ट. नो ह्यूमन हैबिटेशन, नहीं ऐसा नहीं है. ह्यूमन हैबिटेशन इज़ देयर. एंड नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, जो कि वहाँ का नेशनल रीजनल जो वहाँ का स्टेट बर्ड भी है, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड. सियाचिन ग्लेशियर, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली. वेरी सिंपल, सीधा लगाओ टिक डी. हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भिलसा मध्य प्रदेश करेक्ट. द्वारा समुद्रा कर्नाटक में है, महाराष्ट्र गलत. गिरिनगर गिर फॉरेस्ट आपको पता है गुजरात में, इज करेक्ट. स्थानेश्वरा इज नॉट इन यूपी, इट इज समवेयर आई डोंट नो, बट स्थानेश्वर इज नॉट इन यूपी. सो 1 and 3 इज डेफिनेटली करेक्ट. सो 4 तो नहीं है क्योंकि 1 and 3 मुझे पता है करेक्ट है. तो 1 and 3 आर करेक्टली मैच्ड. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये भी डिफ़िकल्ट था. यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, बट मैंने गूगल किया है. सो 2 and 3 आर करेक्ट.
Central Groundwater Authority was formed under EPA. That is the correct statement. India is the largest area under groundwater irrigation. That is the correct statement. And 36% of India districts are classified as overexploited or critical by CGWA. That is incorrect. Actually, it is 16% in 2011. It is not 36%. कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट. जेट स्ट्रीम्स दोनों में होती हैं, गलत है. नॉर्थ में नहीं होती हैं, केवल दोनों में होती हैं. तो 1 इज रॉन्ग. 2 ओनली सम साइक्लोन्स डेफिनेटली डेवलप एन आई. इट इज़ करेक्ट. और टेम्परेचर इनसाइड द आई इज़ लेसर. एक्चुअली इट इज़ मोर. टेम्परेचर इनसाइड द आई मिडिल में होती है, वो ज़्यादा होता है टेम्परेचर. सो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट सी में ज़्यादा है. नागार्जुना सागर, श्रीशैलम, पता हो ठीक है, नहीं तो दैट इज ए वाइल्ड गेस. सो लाइसेंस की ज़रूरत होगी अगर कोई भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कोई भी प्लांट जो है दैट इज़ दी स्पेसिफाइड प्लांट, दैट इज उसको बोलते हैं स्पेसिफाइड प्लांट. तो वो शेड्यूल 6 में प्लेस्ड है, तो उसको कल्टीवेशन के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होगी. सो ए इज़ दी करेक्ट. विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, घंटासाला, कदूरा, चोल जो है दे आर पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड. जीरो टिलेज दैट इज अ मैकेनिज्म बाय विच की उसमें टिलिंग नहीं होती है. मतलब जो आप ट्रैक्टर से करते हो या आप उससे करते हो, व्हाट डू यू से, जिससे किसान खेती करता है. सो जीरो टिलेज जिसमें आप नहीं करते हो ऐसी. सो जीरो टिलेज मीन्स टिलिंग नहीं करनी है आपको. तो दैट इज़ अ मैकेनिज्म एक्चुअली. सो दैट इज़ कॉल्ड नो टिल फार्मिंग. सो इट इज़ टेक्निक, इट इज़ एन टेक्निक टू ग्रो क्रॉप्स विदाउट टिलिंग. ओके. तो उससे सॉइल इरोजन नहीं होता. सो 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट. सोइंग ऑफ वीट इज़ पॉसिबल विदाउट, तो आपको कुछ बर्न नहीं करना है, डिस्टर्बेंस नहीं करनी है, आप वीट पॉसिबल सो कर सकते हैं. डायरेक्ट प्लांटिंग इन दी वेट सॉइल इज़ पॉसिबल विदाउट द नीड फॉर नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग्स. आप डायरेक्टली सीड्स को प्लांट कर दीजिए. एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज़ पॉसिबल. सो कार्बन कैप्चर भी करेगा ये. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब सो द कार्बन विल बी प्रॉपरली कैप्चर्ड. स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन को भी स्टोर करता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी. तो डेफिनेटली ये मतलब अच्छी टेक्निक है ये, जिससे आप जीरो टिलेज से आप बेटर इरिगेशन, बेटर एग्रीकल्चर टेक्निक है, जिससे आप टेक्निक जिससे आप एग्रीकल्चर कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग दी सॉइल. सॉइल की इससे न्यूट्रिशन भी बना रहता है, सॉइल का इरोजन भी नहीं होता. तो बेसिकली हैंड प्लांटिंग मेथड होते हैं इसमें. तो ये सब जगह यूज़ नहीं कर सकते, बट जहाँ पे सॉइल की टिलिंग कम चाहिए वहाँ पे यू कैन यूज दिस टेक्निक. सो इसमें क्या करते हैं ना, क्रॉप को डायरेक्टली सॉइल में सो कर देते हैं और उसको टिल नहीं करते. मतलब उसको उसकी व्हाट दैट कॉल्ड टिलिंग इज. टिलिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? टिलिंग आई एम स्टिल थिंकिंग. टिलिंग मतलब सिंचाई, जोतना, हाँ, समथिंग लाइक दिस ना. सो क्रॉप इज सोन डायरेक्टली इनटू द सॉइल, और सॉइल को हम टिल नहीं करते सिंस द हार्वेस्ट ऑफ द प्रीवियस क्रॉप. ओके. पुराने क्रॉप का हार्वेस्ट आपने कर लिया और सॉइल को आपने जोताई नहीं की और उसी में आपने डायरेक्टली दूसरी क्रॉप भी बो दी. तो ये दिस इज कॉल्ड जीरो टिलेज. ओके. सो 1, 2 and 3. नेक्स्ट, इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स. इनमें कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होंगे? कसावा इज यूज्ड, डैमेज व्हीट ग्रेन डेफिनेटली यूज, ग्राउंडनट सीड्स आर नॉट यूज्ड, 3 is wrong, horse gram is not used, potato,
definitely rotten potato and sugar beet, all are used. So 3 and 4 are incorrect, 1, 2, 5, 6 are correct. सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, दैट इज़ दी, जो कार्बन की क्या कॉस्ट है. कार्बन अगर प्रोड्यूस करता है कहीं भी, कोई भी इंडस्ट्री या कहीं भी कार्बन प्रोड्यूस होता है किसी भी वजह से, तो उसकी क्या कॉस्ट है. उसकी कॉस्ट है कि वो डैमेज प्रोड्यूस, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय ए टन ऑफ CO2 इमिशंस, दैट इज द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन. सो ए इज द करेक्ट. पल्स प्रोडक्शन में ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप. सो ब्लैक ग्राम डेफिनेटली खरीफ और रबी दोनों क्रॉप्स की तरह कल्टीवेट होती है. तो ब्लैक ग्राम को आपको पता होगा हिंदी में क्या कहते हैं. तो यू कैन गेस, काला चना. तो दैट इज द ब्लैक ग्राम. उड़द दाल, काला चना नहीं, दैट इज द उड़द दाल. ब्लैक ग्राम इज द उड़द. एंड व्हाट इज ग्रीन ग्राम, है ना. सो ग्रीन ग्राम इज दी योर मूंग. सो मूंग की प्रोडक्शन तो हमारे यहाँ कम ही है, ये तो बिल्कुल गलत है. 2 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि खरीफ की बढ़ गई और रबी की कम हो गई. रबी मतलब वीट वगैरह, वीट की तो कम नहीं हुई है. सो 3 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट. सो सब ट्रॉपिकल क्रॉप कॉटन, सिंपल. हार्ड फ्रोस्ट नहीं होता, इसके लिए ठंडक नहीं होनी चाहिए, ठंड होगी तो ख़राब हो जाएगी. फ्रोस्ट फ्री डेज होने चाहिए और थोड़ी सी रेनफॉल होनी चाहिए. ब्लैक सॉइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल कैपेबल ऑफ रिटेनिंग. ब्लैक सॉइल आप जानते हैं, इट कैन रिटेन मॉइस्चर. सो दिस इज कॉटन. सोलर वाटर पंप, सो कोई भी करेक्ट नहीं है. सोलर पावर दोनों के लिए यूज़ हो सकती है और पिस्टन के लिए भी यूज़ हो सकती है. नेक्स्ट, शुगर केन कल्टीवेशन के लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैंने नेट सर्च किया है. 1 and 4 आर करेक्ट, 2 and 3 आर इनकरेक्ट. दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. आप पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए, मैं तो छोड़ देता एग्जाम में, मुझे नहीं आता. इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है. इज कंसिडर टू बी द प्रैक्टिस इको फ्रेंडली के लिए. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेक्ट, ठीक है ना. क्रॉप डाइवर्सिफाई होगी तो सॉइल इरोजन कम होगा, कार्बन को ज़्यादा कैप्चर कर सकते हो, तो काफ़ी कुछ एडवांटेजेस हैं. लेज्यूम इंटेंसिफिकेशन डेफिनेटली. टेंशियोमीटर आई डिडंट नो अबाउट टेंशियोमीटर. वर्टिकल फार्मिंग डेफिनेटली. वर्टिकल फार्मिंग से इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर होता है क्योंकि उसमें सॉइल इरोजन कम होता है और कम रिसोर्सेज में आप ज़्यादा क्रॉप उगा सकते हो. सो 4 इज करेक्ट. सो 1, 2 and 4 इज नॉट देयर. सो 1, 2, 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर. ओके. पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इज इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है. मिनिमम सपोर्ट प्राइस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. कंप्यूटराइजेशन ऑफ PACS, कंप्यूटराइजेशन इज द इन्वेस्टमेंट. सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, ओके, इट इज़ इन्वेस्टमेंट. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो फ्री तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है. वेवर कर रहे हो एग्रीकल्चर लोन का, कुछ नहीं हो रहा है. सेटिंग अप, सो 6, हाँ कुछ सेटअप कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है. सो 2, 3 and 6 आर द करेक्ट आंसर. बाकी तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, कोई सब्सिडी वगैरह ही दे रहे हो, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ ए फर्म, ये बेसिकली होता है कि भाई इंटरेस्ट देने लायक है नहीं है कोई फर्म, तो ये चेक होती है ये हमेशा जब भी लोन देना होता है. सो 1 and 2 इसमें रिस्क देखते हैं कि फर्म की कितना रिस्क है, अगर बैंक लोन देगा तो कितना रिस्क में रहेगा. अभी क्या है और इमर्जिंग रिस्क, दोनों रिस्क देखे जाते हैं फर्म के. सो 1 and 2 आर करेक्ट. और जितना हायर होगा उतना वर्स होगा इसकी एबिलिटी टू सर्विसेज डेब्ट. नहीं, अगर ये जितना हायर होगा तो उतना वो अच्छा दे पाएगा लोन का EMI, तो उल्टा है. सो वर्स नहीं होगा, बेटर एबिलिटी होगी टू सर्विसेज डेब्ट. सो 3 इज एक्चुअली, इट शुड बी दी अदर वे अराउंड. सो 1 and 2 आर करेक्ट. प्राइस ऑफ राइस डेफिनेटली. MSP डेफिनेटली गुड. ये डेफिनेटली इज दी राइट ऑप्शन. प्राइस
इम्पेक्ट करता है एमएसपी, आप जानते हैं कैसे इम्पेक्ट करता है एमएसपी, क्योंकि फार्मर्स क्या करते हैं ना, अगर एमएसपी ज़्यादा होता है तो एमएसपी पे बेच देते हैं और मार्केट में वो आता नहीं है। एमएसपी पे किसको बेच दिया, एफसीआई गोडाउंस में बेच दिया, मार्केट में आया नहीं तो मार्केट में प्राइस बढ़ गए। गवर्नमेंट ट्रेडिंग से भी ऑब्वियसली इम्पेक्ट होता है प्राइस, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग से भी इम्पेक्ट होता है, सब्सिडी से भी इम्पेक्ट होता है प्राइस। तो 1, 2, 3 and 4 आर करेक्ट। इंडिया श्रीलंका ट्रेड हमेशा बढ़ा नहीं है, कम ज़्यादा होता रहा है, तो 1 इज इनकरेक्ट। टेक्सटाइल is the major article which is a means of which is the actual item of trade between India and Bangladesh is correct, or Bangladesh has been the largest trading partner of India in South Asia, so 3 is incorrect, or 2 is only 2 is correct. So G20 में ये अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की वगैरह हैं। ए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में वर्किंग कैपिटल मिलेगा आपको फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स, नहीं। कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह ख़रीदने के लिए नहीं मिल रहा है, ये ट्रैक्टर्स वगैरह के लिए तो है, मिनी ट्रक्स के लिए भी नहीं है, कंबाइन हार्वेस्टर्स के लिए भी नहीं है। सो 2 का अगर ट्रैक्टर्स होता तो सही होता, बट कंबाइन हार्वेस्टर मिनी ट्रक के लिए नहीं है। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स के लिए भी है, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस के लिए भी है, बट फैमिली हाउस बनाने के लिए तो नहीं है ये। सो 5 इज़, ये तो सिंपल है, 5 तो नहीं है और 2 नहीं है, तो 1, 3 and 4। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वेटेज ऑफ फूड सीपीआई में डेफिनेटली ज़्यादा है, सही है। WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस, हाँ, केवल गुड स्केल में कैप्चर करता है, 2 भी सही है। और रिजर्व बैंक ने सीपीआई अडेप्ट किया है, 3 इज इनकरेक्ट, 1, 2 इज करेक्ट। ये फैक्चुअल है। वोल्गा कैस्पियन सी, जम्बेजी इंडियन ओशन, सही है। मैकोंग तो नहीं है, ये अंडमान सी साउथ चाइना सी में गिरती है, थेम्स कहीं और गिरती है, ये सेम्स रेड सी पता नहीं कहाँ गिरती है। So in the case of all cereals, pulses and oilseed, procurement at is unlimited. Procurement unlimited नहीं होती है, कुछ एक रेशो में होती है procurement, और ये फिक्स। in the case of cereals and pulses, the MSP is fixed in any state duty at a level to which the market price will never rise. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि MSP इस तरीके से फिक्स होगी कि मार्केट प्राइस नहीं बढ़ेगा। MSP फिक्स कर दी जाती है, मार्केट प्राइस बढ़ती है तो भी, नहीं बढ़ती तो भी MSP फिक्स कर देते हैं। वो फिक्स करते हैं आपकी कितनी कॉस्टिंग लगी है, और भी अलग अलग कॉस्टिंग के ऊपर MSP फिक्स होती है, कोई मार्केट प्राइस से इसका कोई लेना देना नहीं है। सो 1 and 2 आर बोथ आर इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट्स में 1 and 3 आर करेक्ट। कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कॉल मनी इज करेक्ट। जीरो कूपन बॉन्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो दिस इज, आई विल लीव दिस क्वेश्चन, मुझे नहीं पता। 1 and 3 आर करेक्ट। FDI के बारे में सिंपल है, इट इज लार्जली नॉन डेप्ट कैपिटल फ्लो। सो दैट इज, जितनी स्टेटमेंट्स पढ़ोगे इसमें यही दी बेस्ट ऑप्शन है। FDI आप जानते हैं कि पैसा यहाँ पे लगाते हैं, जैसे मान लीजिए मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड यहाँ पे कुछ अपनी खोलना चाहता आउटलेट, सो दैट इज कॉल्ड एन FDI। कैपिटल फ्लो हो रहा है पैसे का, यहाँ पे एक ड्यूरेबल एसेट बन रहा है विच इज अ कैपिटल एसेट फॉर इंडिया। इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, सो 3 इज करेक्ट, 1, 2 and 4 आर इनकरेक्ट। इंडिया का भी सरप्लस है, करंट अकाउंट सरप्लस है। इंडिया का इंपोर्ट बड़ा है, आयरन, स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर्स का, मशीनरी का बड़ा है। एंड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर एक्चुअली मोर देन इट्स इंपोर्ट, दैट इज वाई सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस। सो only 3 is correct. So export of services are more than its import of services. West Texas Intermediate, that is a crude oil, very simple. नॉन फाइनेंशियल डेप्ट क्या होता है, तीनों ऑप्शन सही हैं। दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। IA सेफगार्ड्स उनके लिए है जिन्होंने वहाँ से ख़रीदा है, बाहर से इम्पोर्ट यूरेनियम, तो उनके ऊपर IA का लागू होगा, और अगर हम अपने डोमेस्टिक सप्लाई यूज़ कर रहे हो तो नहीं लागू है।
सो बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी सिंपल. सो ट्रिम्स में क्या है, रेस्ट्रिक्शंस आर प्रोहिबिटेड. यस, इंपोर्ट्स को बढ़ावा देना है तो रेस्ट्रिक्शन डेफिनेटली प्रोहिबिट करनी है, डेफिनेटली करेक्ट. दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. नहीं, केवल ये गुड्स में है, तो 2 इज इनकरेक्ट. दे आर नॉट कंसर्न विद रेगुलेशन. हाँ, इसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं है. ये तो बस ये कहता है कि आप अपनी इकोनॉमी खोल दीजिए, जो भी इंपोर्ट हो रहा है उस पर रेस्ट्रिक्शन को प्रोहिबिट कर दीजिए. एक्सपेंशनिस्ट मोनेटरी पॉलिसी, मतलब ज़्यादा पैसे का फ्लो करना है इकोनॉमी में, तो कट एंड ऑप्टिमाइज स्टैट्यूटरी लिक्विड. अगर कम कर दोगे तो लिक्विडिटी रेशो, लिक्विड बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली कट करना चाहिए. व्हाट इट वुड इट नॉट डू, क्या नहीं करना है. नहीं, कट करोगे तो आ जाएगा, तो ये तो नहीं करना है. इंक्रीज नहीं करना मार्जिनल. क्यों? क्योंकि टैक्स बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली मोनेटरी पैसा कम लोग वो करेंगे. अगर आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बढ़ा दोगे तो लोग कम लोन लेंगे, तो सप्लाई कम हो जाएगा. बैंक रेट कम करोगे, रेपो रेट कम करोगे तो डेफिनेटली दिक्कत हो जाएगी. और सॉरी, तो बैंक रेट और रेपो रेट कम करोगे तो लोन सस्ता हो जाएगा, तो इससे तो एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ जाएगी, यानी कि मॉनेटरी पैसा बढ़ जाएगा. तो क्या नहीं करना है, इंक्रीज करना है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट. ये बेसिकली ये इंटरेस्ट है जिसपे बैंक्स लोन लेते हैं आरबीआई से. तो ये अगर बढ़ा दोगे तो बैंक लोन नहीं लेंगे, तो पैसा नहीं होगा तो पैसा नहीं देंगे. सो 2 तो नहीं करना है आपको, 2 ओनली. 1991 के बाद क्या हुआ, इकोनॉमी खोल दी गई, लिबरलाइजेशन कर दिया. सो वर्कर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में कम हो गई, ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते हम. परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज़ इन दी वर्कफोर्स स्टेडीली इंक्रीज्ड. नहीं, रूरल एरियाज़ में कोई परसेंट शेयर तो बढ़ा नहीं. वर्कफोर्स ज़्यादा बढ़ गई क्या रूरल में? ऐसा तो कुछ बढ़ा नहीं, हो सकता है कम ही हुआ. इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज्ड. हाँ, ऑब्वियसली ये सिंपल है. द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड. नहीं, रूरल एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ रेट कम हुआ है ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते हम. सो 3 इज द करेक्ट आंसर. नहीं, सबसे ज़्यादा एससीबी लोन देते हैं, देन आपका आरआरबी देता है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स देते हैं. एससीबी सबसे ज़्यादा देते हैं, 70-80% तो एससीबी ने कवर किया हुआ है, क्रेडिट डिलीवरी टू एग्रीकल्चर सेक्टर. हाँ, तो पीएसीएस को ये देते हैं फंड. सो 2 इज़ करेक्ट. साइबर इंश्योरेंस में क्या करते हैं कि मालवेयर आ जाए तो भाई आपका रिस्टोरेशन कर देंगे कंप्यूटर का, नया नहीं देंगे. 2 इज़ इनकरेक्ट. कंसल्टेंट वगैरह देंगे टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन. डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट. तो डिफेंस के लिए आपका जो भी पैसा होगा वो ये बियर करेंगे इंश्योरेंस वाले, जो आपके ऊपर कोई फाइल करेगा सूट. तो दैट इज़ साइबर इंश्योरेंस में ये सब कवर होता है. 1, 3 and 4. हिस्ट्री का क्वेश्चन है फैक्चुअल. 2 इज इनकरेक्ट. श्रमणा इज नॉट अ प्रीस्ट विद हाई स्टेटस. उपासका इज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म. एंड परिव्रजका रिनंसिएंट एंड वेंटर. करेक्ट. इंडियन एलिफेंट्स. सो लीडर फीमेल होती है, सबको पता है. 1 इज करेक्ट. जेस्टेशन पीरियड 22 मंथ का होता है. करेक्ट. नहीं, लिए जो 40 ईयर्स ओनली. नो, नॉर्मली काविंग 40 ईयर्स तक नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है. और हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट्स में एलिफेंट्स की केरला में नहीं है. सो 3 and 4 आर इनकरेक्ट. 1 and 2 इज करेक्ट. कावेरी बेसिन नागरहोल कर्नाटक में हो सकता है, वायनाड केरला हो सकता है, सत्यमंगलम में भी है, पापीकोंडा में नहीं है. तो 1, 3 and 4. पापीकोंडा समवेयर इन महाराष्ट्र समवेयर, तो वहाँ पे तो कावेरी का मतलब ही नहीं. ये सब बर्ड्स हैं. तो स्वैम्प डियर कहाँ पे पाया जाता है? कान्हा में. दैट थ्राइव वेल ऑन हार्ड ग्राउंड, और जो घास खाता है दैट इज कान्हा में पाया जाता है. स्टील स्लैग ये रोड में यूज होता है, एग्रीकल्चर सॉइल, सीमेंट सब है. करेक्ट. मस्क डियर ये हिमालयन में पाया जाता है, तो गंगोत्री तो होगा ही होगा.
तो 2 देख लीजिए, ए और बी में है। किशनपुर का जानते नहीं, अस्कोट में है, तो 1 एंड 2। मानस में नहीं है, ठंड इलाके में है। 1 एंड 2 आर करेक्ट। कार्बन फुटप्रिंट के लिए क्या यूज़ करेंगे? रूरल रोड कंस्ट्रक्शन, जिससे एनवायरनमेंट को बेटर किया जा सके। कॉपर स्लैग यूज़ करना है डेफिनेटली। कोल्ड मिक्स करना है, ठीक है। जियो टेक्सटाइल यूज़ करना है, ठीक है। पोर्ट मिक्स नहीं करना होता, पोर्टलैंड सीमेंट नहीं करना होता, इससे तो और बढ़ता है पोर्टलैंड सीमेंट से, तो पोल्यूशन होता है। सो 1, 2 एंड 3। कोल एश कंटेन आर्सेनिक, लीड एंड मर्करी, करेक्ट। कोल्ड फायर पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स, करेक्ट। इंडियन कोल में ज़्यादा होता है, बाहर से इसलिए इम्पोर्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐश है। सो 1, 2 एंड 3 करेक्ट। सो बायोकेयर है, बायोकेयर, सो दैट इज़ अ चारकोल। सो इसमें क्या करते हैं ना कि बायोमास जो होता है, जैसे वुड, ग्रास, क्रॉप रेसिड्यू, मैन्योर वगैरह जो भी होता है, इनको जलाते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो फिर जो यूज़ करते हैं, वो जो चारकोल है दैट विल बी यूज, दैट इज़ वेरी वेरी फर्टाइल, और उसको यूज़ करते हैं फिर क्रॉप्स में। ओके, सो although it looks like a common charcoal, but it, ठीक है, so but it is produced using a specific process to reduce contamination and safely store carbon, and so it brings agriculture benefits, बहुत benefit होता है। it increases the soil fertility, it can withstand the drought or flooding, or it can also get rid soil of heavy metals and other pollutants, और CO2, और क्यों होता है ना, इसमें कार्बन स्टोर करता है ये बोट, और जो भी आसपास का कार्बन होता है वो भी स्टोर कर लेता है। सो इट अनेबल्स टू रिटेन वाटर, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग को भी बढ़ा देता है, और वर्टिकल फार्मिंग में यूज़ करते हैं। इट होल्ड्स सोइल न्यूट्रिएंट्स, इट रिड्यूसेस फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट्स, सो काफ़ी बेनिफिशियल है इन दी क्योंकि बायोमास को ऑलरेडी जला दिया गया है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब अगर आप नॉर्मल यूज़ करोगे, कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करोगे, कोई भी ऐसा मैन्योर यूज़ करोगे, जब वो डिके होता है तो कार्बन वो करता है, एनवायरनमेंट में कार्बन जो है ना इमिट करता है, बट ये नहीं करता क्योंकि ये ऑलरेडी बायोमास को जला के बनाया गया है, जो कि ऑलरेडी कार्बन को स्टोर कर रहा है अपने अंदर, तो कार्बन को एनवायरनमेंट से भी वो ले लेता है, एब्जॉर्ब करता है। तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं इसके। 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट।